Hello friends, last time we have solved examples as well as the numericals from exercise, and up to 4 already we have solved from the exercise. Now today we are going to solve some more numericals regarding with the exercise. Say as a 12.5, the number 5. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic energy and potential energy of the electron in this state? Here in question given that ground state energy is already given, and we know the general equation for the total energy. We can say the total energy of electron, total energy of electron, the general equation En is equal to minus 13.6 upon N square electron volt, and already given in question it is for hydrogen atom. Then for the hydrogen atom, general equation is minus 13.6 upon N square electron volt. Now if we say the ground state energy, then ground state energy matlab N is equal to 1, then we can say for ground state N is equal to 1, then we can say the total energy is minus 13.6 electron volt, and that is already given in question. The total energy is minus 13.6 electron volt. Then ask about what about the kinetic energy and potential energy. Then we very well know about the relation between total energy, kinetic energy and potential energy. We can say kinetic energy is equal to the minus of total energy. कि जितनी भी हमारी काइनेटिक एनर्जी है उससे टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी है, तब यहाँ पर बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 13.6. जितनी काइनेटिक है उससे टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है. हियर टोटल एनर्जी गिवन, देन वी कैन से काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, then kinetic energy is plus 13.6 electron volt. And if we go for the potential energy, then potential energy we know that double of kinetic but negative के terms में we can say minus of kinetic energy, और उसमें भी डबल के डबल of kinetic energy but negative के terms में, therefore minus 2 into 13.6 electron volt, that we can say ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो रिलेशन है ऑलरेडी हमने कर रखा है कि जो काइनेटिक अगर टोटल करनी है तो काइनेटिक जितनी उसकी नेगेटिव टोटल एनर्जी होगी वो दोनों इक्वल, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की डबल बट नेगेटिव, तो -2 के वैल्यू से it is minus 27.2 electron volt. Now if we solve the 12.6, then in question hydrogen atom initially in the ground level absorb a photon means energy, which excite into the N is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of the photon. In question given already initially in hydrogen atom electron is in ground state. We know the energy of the electron in ground state, that is 13.6 electron, minus 13.6 electron volt, and it's absorb the energy मतलब it receive the energy and is jump to the N is equal to 4th level. देखो क्वेश्चन में लिखा है N is equal to 4th level, तो 4th level मतलब वो 4th स्टेट में जाएगा. अगर यहाँ पर लिखा होता
कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स ऑल्सो n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लिखे कि एक्साइटेड टू द फोर्थ लेवल, तो फोर्थ लेवल में जाएगा, लेकिन ऐसा लिखे कि इट्स जंप टू फोर्थ एक्साइटेड, तो फोर्थ एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 5। बट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट क्वेश्चन, अगर हम 6 नंबर सोचे तो उसमें लिखा है इट इज एक्साइटेड टू द n इज इक्वल टू फोर्थ लेवल, मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है। तब हमें उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करनी है। तब हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन तो हम बोल सकते हैं, तो लिख देंगे टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड for the ground state n is equal to 1, then we can say energy is -13.6 electron volt. Now it is jump to the n is equal to 4th level, then we can say energy in n is equal to 4th state, इसको E1 बोले, चलो इसको E4 कर देते हैं, that is -13.6 upon 4 square, that is 16, -13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसका तुम सॉल्यूशन करो then we can get answer 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो this is the energy for the 4th step। हमें तो करना है इसमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कि व्हाटएवर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटोन। तब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस पहले देना है, therefore difference of the energy we can say E4 minus E1, इसका मतलब -0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका डिफरेंस तुम ले लो, जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, और वो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी मिलेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट कन्वर्ट इनटू द जूल, therefore it is 12.75 1.6 10 to the power minus 19, because 1 electron volt is equal to 1.6 10 to the power minus 19 जूल। अब इसका भी सॉल्यूशन करो, तब मिलेगा हमें 20.4 10 to the power minus 19। तो ये हमें डिफरेंस ऑफ द एनर्जी मिला। जैसे हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिले, इजीली वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बिकॉज डेल्टा E is equal to h nu, therefore h nu is equal to 20.4 10 to the power minus 19 जूल। एंड अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी करनी है, then frequency nu is equal to 20.4 10 to the power minus 19 upon h, और h के वैल्यू याद करो, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10 raised to minus 34। इसकी भी कैलकुलेशन करो, और फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिलेगी 3.079 10 to the power 15 hertz। You can say 3.1 10 to the power 15 hertz। अब करना है हमें वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ करना है तो हम बोल सकते हैं कि यूजिंग C is equal to nu lambda, then just make the subject lambda, then lambda is equal to C upon nu। C is the speed of light, frequency nu हमें मिली, उसकी सब वैल्यूज रखो, और हमें वेवलेंथ मिलेगी
0.9747 10 to the power -7 मीटर इसकी जो भी वेवलेंथ है। अब अगर इसको तुम्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो -9 करो, then it is 97.47 10 to the power -9, then 97.47 nanometer, that also you can do। लेकिन ये भी आंसर तुम रख सकते हो लास्ट में, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस अगेन यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और ऐसे फोर्स लेवल की एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ दैट, डिफरेंस मिलेगा, जस्ट कन्वर्ट इनटू द जूल। ये कंपलसरी है क्योंकि हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो हर्ट्ज और मीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करो, फिर इक्वेशन यूज कर दो h न्यू, फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट करो, एंड c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेवलेंथ को सब्जेक्ट करो, हमें वेवलेंथ मिलेगी। बाय द सेम वे नंबर 7 12.7, अब 12.7 से रिलेटेड जस्ट रीड इट आउट द क्वेश्चन केयरफुली। क्या लिखा है? फर्स्ट पार्ट में बोला यूजिंग बोर मॉडल कैलकुलेट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n is equal to 1, 2 and 3 levels and calculate orbital speed in each 3 levels। कि हमें बोर मॉडल यूज करना है and our interest to calculate speed of the electron in first orbital, second orbital and third orbital level, और उसी तीनों ऑर्बिट में हमें करना है उसके ऑर्बिटल स्पीड, सॉरी ऑर्बिटल टाइम पीरियड करना है, तो सेकंड केस में टाइम पीरियड करेंगे। अब जैसे ही हम बोलेंगे कि बोर मॉडल मतलब ऐसा सोचो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, then during revolution the one force is exerted, it is called centripetal force, and this centripetal force balanced by Coulombian force। तो यहाँ पर अगर हम सोचें कि हमारा एक्सरसाइज का 7 अगर सोल्व करना है तो पहले ही बोल देंगे कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन या फिर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, during circular motion of electron, what we can say, the centripetal force is balanced by Coulombian force, then we know the equation for the centripetal force, that is mv²/r। अभी हमें जनरल इक्वेशन करनी है क्योंकि हमें n is equal to 1, 2 and 3 लेवल्स के लिए चाहिए, तब ऐसे जनरल के लिए Vn and Rn बोलते हैं इज इक्वल टू Coulombian फोर्स, दैट इज K Q1 Q2 मतलब Z²/R²। अब यहाँ पर एक R को कैंसल, एक जो R है उसको यहाँ पे ले आए, तो इक्वेशन कुछ होगी हमारी m Rn Vn² is equal to K into Z²। अब इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, m Vn Rn into Vn is equal to K Z², और according to the question for the hydrogen atom we can write 1, तो यहाँ पर बोल सकते हो Z is equal to 1 for hydrogen atom, then equation is only K²। यहाँ पर क्या किया हमने, we have split into 2 parts, तो MVR is called angular momentum, और बोला just use Bohr condition, तो Bohr condition angular momentum is in integral multiple of h/2π, that's why in place of MVR we can say nh/2π, Vn is equal to K², just make subject Vn,
then Vn is equal to k square 2 pi upon NH. This is our general equation. और जनरल इक्वेशन में भी कुछ ऐसा बोल दें कि Vn is equal to k square 2 pi upon h और 1 upon n को सेपरेट कर दें, क्योंकि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए चाहिए। तब अगर हम बोले कि 4 n is equal to 1, then n is equal to 1 के लिए V1 that is k square 2 pi upon h. These all are the constant value. K की वैल्यू E, 2 pi and h सभी की वैल्यूज रखो। तुम्हें रखना है यहाँ पर सब वैल्यूज। K याद करो 9 into 10 to the power 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रैंक कांस्टेंट, सभी वैल्यूज रखो और जस्ट चेक इट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो भी हमें मिल रहा है वो 21.85 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, जिसको हम अगर 10 to the power 6 में कन्वर्ट करें तो 2.185 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें V1 मिला। और ये जो जनरल इक्वेशन है उसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से Vn इज इक्वल, देखो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 की, देन वी कैन से इट इज V1 अपॉन n। फर्स्ट के लिए तो 1 ही हुआ, तो यही हो गई हमारी V1 की इक्वेशन। देयरफॉर अगर हमें सेकंड के लिए चाहिए n is equal to 2, then easily V2 is equal to V1 by 2, मतलब ये जो वैल्यू है बस उसका हाफ कर दो, तो हाफ हमें मिलेगा 1.092 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही थर्ड के लिए n is equal to 3, then V3 is equal to V1 by 3, तो जो V1 है उसका डिवाइडेड बाय 3 करो, वी कैन गेट आंसर 0.728 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो इसी इक्वेशन से हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल की हमें स्पीड मिलेगी। अब हमें उसी ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड के लिए अगर हम ऐसे जनरल इक्वेशन यूज करें, ये हम बोल देंगे हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, फॉर द टाइम पीरियड, जस्ट यूज द इक्वेशन फॉर द स्पीड Vn and V is r omega, then we can say Rn omega। अब ओमेगा इज 2 पाई बाई टी को ऐसे टी एन बोलो। तब अगर हमें ऑर्बिटल स्पीड करनी है और यहां से ये याद नहीं है, तो अगर v इज 2 पाई r बाई टी होता है, दिस इज आल्सो 2 पाई r बाई टी, देन tn इज 2 पाई rn अपॉन vn। से ऐसे इक्वेशन नंबर 2। अब we know the Vn. Vn is V1 upon n. This is our general equation. इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हम Rn को सोल्व कर दें, उसकी इक्वेशन को सोल्व करें, तो हमें पीरियडिक टाइम की भी एक जनरल इक्वेशन मिलेगी। तो उसके लिए नाउ if we use the equation for the radius, that is n square h square epsilon naught upon pi square m z, और हाइड्रोजन एटम z का 1 है, इसी को बोल दो Rn। तब सिर्फ इतना ले लो, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर m, और उसमें भी
n इज इक्वल टू 1 के लिए बोलो, अगर तुम यहां पर बोलो कि 4 n is equal to 1, then you can say r1 is equal to h square epsilon naught upon pi square n, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और r1 की भी वैल्यू अगर तुम यूज कर दो और कैलकुलेशन करो तो मिलेगा 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर। और जनरल में बोल सकते हो तुम Rn is equal to n square R1। क्लियर? ये हो गया हमारा R1 और n is equal to 1, जनरल फॉर्म होगा n square into R1। और अब बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, what about the equation for the time period? Then we can say 2 pi, और Rn मतलब it is n square R1 divided by Vn, Vn is V1 upon n, then denominator is denominator in numerator, so we can say general equation for the time period is n cube into 2 pi R1 upon V1, ये हो जाएगा n क्यूब 2 pi R1 upon V1। अब पहले 2 pi R1 upon V1 करें, तब दिस इज फॉर n is equal to 1, तो फर्स्ट की तो हमें पीरियडिक टाइम चाहिए, क्योंकि हमें सभी लेवल का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्पीड मिला, ऐसे ही हमें इसका पीरियडिक टाइम भी चाहिए। तब अगर हम इसका पीरियडिक टाइम करें then we can say for n is equal to 1, t1 is equal to 2 pi r1 upon v1। r1 की वैल्यू है हमारे पास 0.53 10 to the power minus 10 meter, also we having v1 2.185 10 to the power 6, ये सभी वैल्यू यहाँ पर रखो, और हमें फर्स्ट टाइम पीरियड कुछ मिलेगा 1.52 10 to the power minus 16 सेकंड। So this is for time period of electron in first orbit। अब अगर हमें T2 करना है तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि Tn is equal to n cube T1 because it is the T1। तब अगर हम सोचें कि for n is equal to 2, then what we can say about the T2? 2 का क्यूब into T1, that's why 8 times T1। अब अगर 8 times इसको मल्टीप्लाई करें then we can get answer 1.22 10 to the power minus 15। एक्चुअली इट इज 12 पॉइंट मिलेगा, माइनस 16 में से माइनस 15 करो तो 1.22 10 to the power minus 15, एंड for n is equal to 3 we can get it is 927 T1, and 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा हमें 4.11 10 to the power minus 15 सेकंड। Once again for the time period की इक्वेशन v is equal to 2 pi r by t से भी डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज r ओमेगा is 2 pi by t, जस्ट मेक दिस ऑब्जेक्टिव। और दोनों की इक्वेशन, इसकी तो इक्वेशन है हमारे पास आगे वाली, जस्ट जनरल इक्वेशन फॉर द रेडियस, और उसका भी हमने आंसर ले लिया, तो बोल सकते हैं इट इज n square r1 v1 और r की वैल्यू रखो, देन जनरल इक्वेशन इज n cube t1 फॉर द टाइम पीरियड। तो अगर फर्स्ट का हमें टाइम पीरियड दे रखा है और ऐसे ही अगर पूछे कि फॉर nth लेवल का या फोर्थ लेवल का क्या होगा, तो डायरेक्ट ऐसे n cube t1। तो रेडियस के लिए अगर यूज करो तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर r1। देखो ये जो हम बोल रहे हैं दिस इज
जनरल इक्वेशन फॉर द रेडियस क्या होगा, n²r1 फॉर एनी ऑर्बिट। ऐसे स्पीड के लिए क्या होगा, v/m, ऐसे जनरल के लिए, और टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, n³t1। कैसे जनरल इक्वेशन याद करो, तो ऐसे भी बहुत सारे MCQ सॉल्व हो सकते हैं। Now about number 8 का क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से कि रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10 to the power -11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट? कि रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट के लिए, तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन अभी हमने जो आगे डिस्कशन किया वही, जनरल इक्वेशन फॉर द रेडियस इज n²h²epsilon0/π²m। वो देना है फॉर हाइड्रोजन एटम z = 1, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पर बोला है वो हाइड्रोजन एटम तो क्लियर दे ही रखा है। और वी कैन से Rn = n²r1, क्योंकि यहाँ पर अगर here R1 given, already it is given 5.3 10 to the power -11 meter. Then easily we can calculate radius for the second and third orbit. For n is equal to 2, क्या होगा, R2 is equal to 4 times R1, मतलब 4 into 5.3 10 to the power 11 मीटर। तो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा ऐसे 2.12 10 to the power -10 मीटर। और ऐसे ही अगर तुम बोलो n is equal to 3 के लिए थर्ड ऑर्बिट, then R3 is equal to square for 9 times of 5.3 10 to the power 11। इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा कुछ 4.77 10 to the power -10 मीटर। जो हमें आगे का रेफरेंस है वही यहाँ पर हमें रेडियस के लिए पूछा है। तो ये जनरल इक्वेशन यूज करो इजीली, और कोई भी ऑर्बिट के लिए हमें रेडियस मिल सकती है। इट इज n² टाइम्स ऑफ फंडामेंटल मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट।